Principal Tiwari sir, Honorable Dean of Placement Sri Ravandare sir, Honorable Gaikwad sir, all honorable faculty members and my dear students and parents. I know that this is the dream day of your life because after so much of hassles of this COVID and then the rounds of admissions, you have come to one of the best colleges in Maharashtra. So first of all, congratulations for getting admission into this best institute, and I am sure you will make best out of it. But getting admission into a best college is just a start and it's not the end. Unfortunately, many students feel कि अभी हो गया ना, PCCOE के कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना, अभी तो प्लेसमेंट गारंटी है, अभी क्या जरूरी है इतना सब करने की, क्या दिखा रहे हैं? Research and development and then foreign language and soft skills, अभी क्या है? 4 साल पढ़ना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है, बाहर जाना है, बात खत्म। ऐसा कभी नहीं होगा। Let me tell you very firmly. Mr. Ravandare would definitely bring in 250 or 300 companies to this campus, but he will not be able to place you till the time you come to that level. So don't think that just getting into a good college, getting best companies for campus placements will place you in a good company. You have to take a lot of efforts. I am really delighted कि यहाँ पे दोनों साइड मैचिंग है, बहुत कम कॉलेजेस में होता है। पहले एक साइड आपको पूरी तरह से कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटिटिव बना रही है, जैसे प्रोफेसर तिवारी साहब and all his team through all these different types of infrastructure and types of programs are making you capable of entering into industry. And on the other hand, Mr. Ravandare and his team is trying to fetch in maximum companies, good companies, to get you best placements. So both the hands of these organizations are working in coordination to give you the best. Now it's your turn to accept that best and do best of yours so that you can get the best out of it. Friends, जैसे रविंद्र सर ने बोला, मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ। पेरेंट्स से इसके लिए थोड़ा हिंदी बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। पेरेंट्स स्टूडेंट्स को तो हिंदी आती है, बहुत हिंदी पिक्चर देखी होगी, अभी 8-9 महीने करें क्या घर में बैठ के। आई एम श्योर। पहले तो एक मेरे सभी दोस्तों से विनती है, कम से कम रोज 5 घंटा बैठने की कोशिश करो। अभी ये 8-9 महीने में ना आपको बैठने की आदत ही छूट गई है। अभी भी कुछ लड़के सोते हुए देखते होंगे। क्योंकि जैसे ही अभी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, you have to be in college for at least 6 to 8 hours. You have to sit. बहुत difficult हो गया अभी 8-9 महीने में, बुरी आदतें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। So you have to first start practicing that, and then concentrating on lectures. ये ऑनलाइन का बहुत प्रॉब्लम हो गया। वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, बस चल दे वन साइड। ये इधर नहीं होगा ना, क्लासरूम में क्या ऑफ करेंगे, क्या ऑफ करेंगे। हाँ, वैसे भी है हमारे यहाँ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो they have acquired art of आंखें खुली रख के सोने की आदत। But that will not help. So friends, जैसे सर ने बोला, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट्स कंपनीज आ जाएंगे, सबकी एक ही रिक्वायरमेंट है। रिमेंबर वन थिंग, complete all semesters throughout first class. That's the requirement of all these companies, and college is not going to give you first class. It's you. आपको फर्स्ट क्लास अचीव करना है, and
University of Pune, Savitribai Phule University of Pune is going to set the papers. So efforts लेने ही होंगे. First class is a must if you want good placements, and not only placements, क्योंकि I know 30% students are not interested in placements. उनको आगे की स्टडी करनी है, बट आगे की स्टडी स्पेशली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, आपको जो करियर पाथ है ना वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए, आपका रिज्यूमे है बहुत अच्छा दिखना चाहिए. सो थ्रोट फर्स्ट क्लास हेल्प्स यू देयर आल्सो. सो नथिंग बिलो दैट इज एक्सेप्टेबल इफ यू वांट टू रियली गेट अ गुड करियर. आज आपको ये एक ही चीज करनी है कि 4 साल का रोड मैप बनाना है. क्या क्या करना है मेरे को 4 साल में. माय फर्स्ट ईयर इज ओनली टू गेट फर्स्ट क्लास. बाकी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि पहले ही लेट हो चुका है. नाउ एवरीथिंग विल बी कॉम्प्रेस्ड एंड यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन. अनफॉर्चुनेटली बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, बट यू हैव टू कोप अप विद ऑल दैट एंड यू हैव टू स्टिल मेंटेन फर्स्ट क्लास. आगे की सोचिए. तो पहला साल दूसरा कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा. एफई में फर्स्ट क्लास इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू अचीव. बट राइट फ्रॉम सेकंड ईयर यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग एल्स. सर ने बोला फॉरेन लैंग्वेज. वे आप सोचते होंगे यार आर्ट्स कॉलेज में आए क्या इंजीनियरिंग में आए पता नहीं चल रहा है. नहीं भैया, ये फॉरेन लैंग्वेज आपको 2 तरीके से यूज होंगे. एक स्पेशली कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो है ना, और जो भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए इफ दे नो फॉरेन लैंग्वेज एंड दैट टू अप टू गुड एक्सटेंट, एक 2-3 महीना फॉरेन लैंग्वेज सीख के कुछ नहीं होगा. उनके जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, चाहे वो जापानीज के हो चाहे वो जर्मन के हो, वो सर्टिफिकेशंस आपको लाने हैं सो दैट व्हेन यू गेट इनटू कैंपस प्लेसमेंट्स कंपनीज देखती है कि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है. हाँ ठीक है फर्स्ट क्लास है आपको, दैट्स ओके, बट और क्या है. You know one foreign language. All these IT companies are interested in getting students who have got this additional qualification of foreign language. क्योंकि आज for these IT companies are not only dependent on English speaking countries like US and UK, they are also dependent on other countries like Japan, Germany and so on and so forth. So for that they require students who acquire the knowledge of the language of that country. Second, those of you who want to go abroad for higher studies, especially today's major country after USA is Germany. And let me tell you very frankly, Germany will require you to know German language up to an extent of B1 level certification of German. That is 3rd level. A1 start, A2 and then B1. It goes up to C2, forget about it, but at least you should get the 3rd level of certification. Then only you can go in Germany for higher studies. And let me tell you, today the lowest cost of education abroad is in Germany, because most of the universities don't charge anything for tuition fees, or if they charge it's very less. Only you have to bear living expenses, and that too working during your holidays and all that, you can earn that much money and then it's almost free. But इसके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी up to that level. जापान में जाना चाहते हो, जापानीज लैंग्वेज सीखनी होगी. ये कंट्रीज ऐसे है ना, ये इंग्लिश दूर दूर तक पता नहीं होता है इनके लोगों को. सो खाली इंग्लिश से फायदा नहीं होगा, ये फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होगी. यू आर लकी इनफ कि कॉलेज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है. इसके लिए बाहर जाएंगे ना तो टाइम और मनी बहुत ज्यादा स्पेंड करोगे. यहाँ पे आपको कॉलेज में मिल रहा है, टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड लर्न द फॉरेन लैंग्वेज फॉर योर बेटरमेंट. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सर ने बोला है. सॉफ्ट स्किल्स क्यों चाहिए? प्लेसमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंपनीज आती है ना, आपको कैंपस प्लेसमेंट में जीडी, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, इसमें देखती क्या है? आपके सॉफ्ट स्किल कैसे, आप बात कैसे करते हैं, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कैसा है, आपका इंग्लिश राइटिंग कैसा है. ये पूरी चीजें देखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए वो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए.
They don't require Shakespeare's. But अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, क्योंकि आप सीधा क्लाइंट के साथ बाद में कम्युनिकेशन करते हो। And they want that their image should remain very good. So they want you to have better communication skills. Coming to these patents, research papers, internships, वगैरह वगैरह वगैरह। Actually ना, शायद आप लोग सोचते हो कि अरे मेरे को अगर रिसर्च ही करना होता तो मैं आईएसआर में जाता। I have come to engineering college. Why should I do research? Friends, again, either for campus placements or when you want to go abroad, this matters a lot. If you have done some research paper, especially when you are going abroad for higher education, या अभी बोलने की जरूरत इसके लिए है कि चौथे साल में समझने से कुछ नहीं होने वाला है। ये 4 साल में आपको ये सब करना है। आपके नाम पे कोई रिसर्च पेपर है, पेटेंट तो बहुत आगे की बात है, कम से कम आपके नाम पे कोई रिसर्च पेपर है, आप कुछ इंटर्नशिप किया है, तो जब आप अप्लाई करते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, they give lot of weightage to it. Yes, your academics is given a weightage, GRE TOEFL scores are given a weightage, but these activities like research papers, activities like patents, activities like internships are given a lot of weightage by these universities. So abroad जाना चाहते हो तो भी इसकी आपको हेल्प मिलेगी, प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो तो भी इसकी हेल्प मिलेगी।